السلام علیکم۔ شہر گاؤں کا احوالی میں ہوں آپ کے ساتھ ایمن چودھری۔ بات کریں گے اندرون سندھ میں بھی طوفانی بارشوں نے تباہی مچا دی۔ مختلف حادثات میں 9 افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ حیدرآباد کے بیشتر حصوں سے پانی تاحال نہ نکالا جا سکا۔ میرپور خاص میں متعدد کچے مکانات منہدم، مکین کھلے آسمان تلے رہنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ زنڈوں میں روشت آباد کے قریب سین نالے میں 2 مقامات پر شگاف پڑنے سے کئی دیہات زیر آب آ گئے۔ بران ندی کا پانی سائندہ اعلانی میں بھی داخل ہونے سے مکینوں کو نقل مکانی کرنا پڑی۔ سندھ میں بارشوں کا چھٹا سپیل جاری۔ حیدرآباد میں نشیبی علاقوں میں جمع پانی تاحال نہ نکلا۔ لاڑکانہ، جیکب آباد اور قمبر شہداد کوٹ میں بارش کا سلسلہ جاری۔ آسمانی بجلی گرنے سے قمبر میں 3 نوجوان ہلاک، 6 زخمی ہو گئے۔ رانی پور کے گاؤں کمال لاشاری میں آسمانی بجلی گرنے سے بچہ جاں بحق ہو گیا۔ میرپور خاص میں بارش کے بعد پانی کچے مکانات میں داخل، خاندان دکانوں میں پناہ لینے پر مجبور۔ ٹھٹہ میں بارشوں سے تاریخی شاہجہان مسجد کی بنیادوں میں دراریں پڑ گئیں۔ بارشی پانی کی نکاسی تاحال نہ ہو سکی۔ جڈو میں روشن آباد کے قریب سیم نالے میں 2 مقامات پر شگاف پڑنے سے کئی دیہات زیر آب، مقامی لوگوں کو نقل مکانی کرنا پڑی۔ سکھر اور گڈو بیراج پر نچلے درجے کی سیلابی صورتحال۔ سکھر بیراج سے نکلنے والی 4 کینالوں کو 2 روز قبل بند کر دیا گیا تھا۔ مہراب پور میں ہلانی سٹاپ پر کئی کلومیٹر تک قومی شاہراہ برساتی پانی میں ڈوب گئی۔ اندرون سندھ بارش نے تباہی مچا دی، سڑکیں تالاب میں تبدیل ہو گئیں، کئی علاقوں سے بارش کا پانی نہ نکالا جا سکا۔ شہر گاؤں بارش کا پانی سیلابی صورتحال اختیار کر چکا ہے۔ متعدد علاقے بجلی سے بھی محروم۔ کس شہر میں کیا صورتحال ہے، وہاں موجود اپنے نمائندگان سے جانیں گے۔ حیدرآباد سے ناصر شیخ، جیکب آباد سے اسد علی مغر اور ٹنڈو لیار سے سید غلام بخاری ہمارے ساتھ ہوں گے، ان سے جانیں گے کہ وہاں کیا صورتحال ہے۔ سب سے پہلے رخ کریں گے حیدرآباد کا، جہاں پر پانی میں پھنسے ہوئے شہریوں کو نکالنے کے لیے پاک فوج کے جوان پہنچ چکے ہیں۔ ناصر شیخ، بتائے گے اس حوالے سے۔ جی، گزشتہ دنوں حیدرآباد میں ہونے والی موسلادھار بارش کا نشیبی پانی، علاقوں میں جمع ہونے والا پانی بیشتر علاقوں سے ابھی تک نہیں نکالا گیا ہے۔ خاص طور پہ جو سب سے زیادہ متاثر سوسائٹی ہے وہ ہے مہر علی ہاؤسنگ سوسائٹی۔ یہاں پر جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ آباد ہیں اور یہاں پکے مکانات ہیں، برسوں سے یہاں رہ رہے ہیں۔ ابھی تک کوئی ریلیف کے کام شروع نہیں ہوئے ہیں اور پانی گھروں میں تقریباً 4 سے 5 فٹ پانی ہے اور جتنے بھی لوگ ہیں سب اپنے اپنے گھروں پہ چھتوں پہ بیٹھے ہیں۔ تو امداد کا کوئی ذریعہ جاری نہیں ہے۔ ہمیں کھانا وغیرہ تو چاہیے نہیں، ہمیں صرف یہ چاہیے کہ علاقے کا پانی نکل جائے۔ اوورآل یہاں صورتحال بہت زیادہ خراب ہے۔ کئی روز سے یہاں کے رہائشی پانی میں پھنسے ہوئے ہیں، وبائی امراض پھوٹ رہے ہیں۔ یہاں پر جو ہے وہ سامان کا مسئلہ ہے کہ سامان جو ہے وہ پانی میں گرا ہوا ہے، جس سے وہ تباہ و برباد ہوا ہے۔ آپ ہمارے ساتھ رہے گا، جیکب آباد کا رخ کریں گے جہاں پر اسد علی مغل ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اسد، بتائے گا یہاں پر کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل، بات کی جائے حالیہ دنوں میں ہونے والی بارش کے بعد پیدا ہونے والے مسائل کے حوالے سے تو آج تیسرے روز بھی جیکب آباد اور گرد و نواح میں بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ بارش کے بعد نشیبی علاقے مکمل پانی کی لپیٹ میں آ چکے ہیں۔ اس وقت میں موجود ہوں جیکب آباد کی جان محمد کالونی میں۔ ہمارے ساتھ یہاں پر علاقہ موجود ہے، ان سے بات کریں گے کہ ان کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے۔ جی، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کوئی سسٹم برابر نہیں ہے، پانی کے مسائل دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر یہ بارش کی وجہ سے نہیں ہے، یہ جو ہے نا مسلسل بارش سے پہلے بھی یہی حال ہے۔ یہاں کے کونسلر صاحب جو ہے نیند میں جو ابھی تک سو رہے ہیں، انہوں کو کچھ ماحول کا پتہ نہیں ہے۔ بالکل، آپ نے ان کی شریک گفتگو سنی، انہوں کا یہی کہنا تھا کہ جان محمد کالونی مسائل کی آماد بن چکی ہے۔ یہاں پر کوئی بھی منتخب نمائندہ سمیت مقامی انتظامیہ کی یہاں پر کوئی توجہ نہیں ہے۔ انہوں نے اعلیٰ انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ پانی کی نکاسی کے لیے کڑے اقدامات کرنے چاہیے۔ اور اب رخ کریں گے ٹنڈو لیار کا، جہاں پر سید غلام بخاری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ وہاں پر عوام کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے اور کن مشکلات کا سامنا ہے، بتائیں گے۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں ٹنڈو لیار کے انڈن محلے میں۔ سندھ بھر کی طرح ٹنڈو لیار میں بھی طوفانی بارشوں نے جو ہے یہاں پر تباہی مچا دی ہے۔ یہاں پر جو ہے اس وقت ہم موجود ہیں انڈن محلے میں، جو سب سے زیادہ اس بارشوں میں متاثر ہوا ہے۔ یہاں پر جو ہے کافی 4-4 5-5 فٹ جو ہے گھروں میں پانی داخل ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے لوگوں نے یہاں سے نقل مکانی شروع کر دی۔ اپنے عزیز و اقارب کے یہاں پر انہوں نے جو ہے پناہ لی۔ شہر کے چند علاقوں میں جو ہے یہاں پر ہمیں ضلع انتظامیہ اور میونسپل کمیٹی کے لوگ بھی کام کرتے نظر آئے ہیں، جو نکاسیات میں مصروف عمل تھے۔ جی اپ ڈیٹ کر رہے تھے ہمارے نمائندگان ناصر شیخ نے ہمیں بتایا، جیکب آباد کی صورتحال کے حوالے سے ہمیں اپ ڈیٹ کیا۔ اسد علی مغل اور ٹنڈو لیار سے ہمیں
हमारे नुमाइंदगान ने अपडेट किया। आप तमाम नुमाइंदगान का बेहद शुक्रिया। इंतहाई अबतर सूरत हाल है। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे मीरपुर खास की तहसील झुड्डो में LBOD सेम और आवीज गुजरगाहों में शगाफ पड़ गए। 1 दर्जन से ज्यादा इत्तेहाद ज़ेरे आब आ गए। शगाफ पुर करने के लिए फौजी जवान ज़िला इंतजामिया के साथ इमदादी कामों में मसरूफ हैं। उधर बदीन में भी LBOD सेम वाले की RD 283 में पड़ने वाले शगाफ 24 घंटे बाद भी पुर न किया जा सका। पाक आर्मी और रेंजर्स के जवान भी पहुंच चुके हैं। आपको अपडेट करें कि रेंजर्स के जवान भी इन इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ हैं। शकील मुजाहिद हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद उनसे जानेंगे। शकील, बताएंगे इस हवाले से। जी बिल्कुल, झुड्डो के इलाकों में आबी गुजरगाहों और सेम नालों में पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। नदी नालों में शदीद तुग़यानी से सूरत हाल संगीन होती जा रही है। LBOD की नाकस हिकमत अमली और नाअहली की सबब मुख्तलिफ मकामात पर शगाफ पड़ना शुरू हो गए। रोशनाबाद के करीब आबी गुजरगाह में सैलाबी पानी पलटने से सेम नाले में 2 मकामात पर शगाफ पड़ गए, जो शगाफ बढ़ते ही जा रहे हैं। अब तक उन्हें पुर नहीं किया गया है। दूसरी जानिब जो है आर्मी पुर नहीं किया गया है। शकील मुजाहिद अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ वक्त है ब्रेक का, लेकिन उससे पहले न्यूज अपडेट। थरपारकर में मूसलाधार बारिश के 5वें रोज बाद में डिप्लो अस्पताल के वार्ड्स, क्वार्टर्स, एम्बुलेंस और मशीनरी सेरेआब हैं। जिले इंतजामिया की हिदायत के बावजूद नकासियाब का काम सुस्त रवि का शिकार है। मजीद तफसीलात थरपारकर से इस रिपोर्ट में। थरपारकर में मूसलाधार बारिश के बाद ताल्लुका अस्पताल डिप्लो 5वें रोज भी ज़ेर-ए-आब। वज़ीर आला सिंध ने डिप्लो का दौरा तो किया, मगर ताल्लुका अस्पताल डिप्लो जाना पसंद न किया। 30 गाड़ियों के काफिले ने पानी निकालने वाला पंप भी तोड़ डाला। अस्पताल के अहाते में 4 फीट जबकि वार्ड्स में 2-2 फीट पानी मौजूद है। अस्पताल में नकासी आब का ताहाल कोई बंदोबस्त न किया जा सका। अस्पताल इंतजामिया ने एक करीबी औताक में OPD बनाकर इलाज की सहूलियात शुरू की है। सुपरिटेंडेंट ताल्लुका अस्पताल डॉक्टर नंदलाल खीमानी का कहना है, महकमा पब्लिक हेल्थ ने पानी निकालना शुरू कर दिया है, लेकिन पानी मुकम्मल तौर पर निकालने में वक्त लगेगा। मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। दादू में सैलाब से मुतासरा इलाके काजू में बाप बेटे की मैयत ले जाने के लिए मिन्नतें करता रहा। इंतजामिया ने कश्तियों में पेट्रोल ना होने की वजह कई घंटे तक इंतजार कराया। दुख भरी ये दास्तान देखते हैं अरबाब रुस्तमानी की इस रिपोर्ट में। बच्चा पानी में लुढ़क पानी में तकलीफ करे। 12 साल बेटे की मैयत आबाई गांव ले जाने के लिए गमज़दा बाप बेताब। ये दादू के इलाके काशफ के गांव नगरदारेव की रिहायशी सादिक खोसो है, जिसका बेटा काशिफ कराची में दौरान इलाज दम तोड़ गया। बाप ट्रक में मैयत लेकर आबाई गांव को निकला तो PF बंद पर सैलाबी पानी रुकावट बन गया। सादिक खोसो ने इंतजामिया से कश्ती मांगी। कश्ती आई तो बताया गया इसमें तेल नहीं। खाते में बिठान सही आम जी खिदमत ले ना जैसे आम जी खाने लग पिया हो जाते 3 घंटे की तगोदो के बाद सादिक खोसो को कश्ती मिल गई। असिस्टेंट कमिश्नर बिशारत हुसैन का कहना है, कश्तियां, तेल, स्टाफ सब मौजूद है, कोई मसला नहीं। लाड़काना में गुज़श्ता 2 रोज से जारी बारिश के बायस मोहनजोदड़ो के सारे कदीमा में बारिश का पानी जमा हो गया। नशेबी मकामात में पानी जमा होने के बायस सारे कदीमा को नुकसान पहुंचने का खदशा बढ़ चुका है। महकमा सकाफत के अमले को नगासियाब के इंतजाम करने में मुश्किलात का सामना है। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़श्ता 48 घंटों में 124 और मोहनजोदड़ो में 182 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। रुख करेंगे बलूचिस्तान का। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बारिश। कोयटा के इलाके हुना में बरसाती नाले में बहकर बच्चा जाँ बहक। तुरबत में मकान की छत गिरने से 3 अफराद जख्मी। मौला नदी में ऊंचे दर्जे का सैलाब, कई देहात ज़ेरे आब आ गए। उराली नदी में शदीद तुग़यानी, सैलाबी रेले में 65 अफराद फंस गए। तुरानी नदी में फंसे 20 अफराद को भी रेस्क्यू कर लिया गया। हरनाई में तबाही, पुल टूट गए, खंबे और दरख्त उखड़ गए, घर खंडर बन गए। मजीद बारिश की पेशगोई की गई। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बारिश। कोयटा के इलाके हना में बरसाती नाले में बहकर बच्चा जाँ बहक। बलूचिस्तान में हरनाई में तबाही, पुल टूट गए, खंबे और दरख्त उखड़ गए।
पौला नदी में ऊंचे दर्जे का सैलाब, कई देहात जेर आब। पुराली नदी में शदीद तोगयानी, सैलाबी रेले में 65 अफराद फंस गए। तुरानी नदी में फंसे 20 अफराद को भी रेस्क्यू कर लिया गया। लसबेला के पहाड़ी इलाकों में मुसलसल बारिशों से सैलाबी रेले हब डैम में दाखिल होना शुरू। हब डैम में सिर्फ 1 फुट पानी की गुंजाइश रह गई। इंतजामिया ने करीबी रिहायशियों के लिए अलर्ट जारी कर दिया। बोलान में सैलाबी रेलों से मुनहदिम होने वाले मच पुल की मुरम्मत का काम शुरू न हो सका। पुल के मुकम्मल मुनहदिम होने का खदशा है। हालिया बारिशों से मुल्क भर में काश्त फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा है, जिससे काश्तकारों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ। काश्तकारों ने हुकूमत से अपील की है कि उनकी दाद रसी की जाए। किस शहर में कितना नुकसान हुआ, वहां मौजूद अपने नुमाइंदगान से जानेंगे। ठट्ठा से ताज़ा गुल हमें अपडेट करेंगे। मीरपुर खास से बिलाल महमूद और जलालपुर भटिया से मोहम्मद जाहिद मनीर से जानेंगे कि वहां क्या सूरत हाल है। सबसे पहले रुख करेंगे ठट्ठा का, जहां पर हालिया बारिशों के बायस कौन सी फसल को कितना नुकसान पहुंचा है, ताज़ा गुल से जानेंगे। अगर हम ठट्टा की बात करें तो ठट्टा में जो है चावल, टमाटर, मिर्ची, भिंडी, धनिया और कपास के फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है और फसलें पानी भर जाने से तबाह हो गई है और जिससे आबादकारों को जो है लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। इस वक्त हमारे साथ एक आबादकार मौजूद है, उनसे मालूम करते हैं कि वो किस हवाले से क्या कहते हैं। हमारी फसलें तकरीबन 40 एकड़ थी, उसमें से 15-20 एकड़ तबाह हो गई है, पानी से भर गई है, कुछ अनाज नहीं है और अभी भी आप हालत देख सकते हैं कि हालत हमारी काफ़ी पोशीदा है। किसान की बात सुनी, इनका यही कहना था कि हमारी जो है कई एकड़ फसल जो है बारिश की वजह से तबाह हो गई है, जिससे हमें शदीद जो है माली नुकसान का सामना करना पड़ रहा है और मज़ीद भी बारिशें हो रही है। अगर और हुई तो हमारा जो थोड़ी बहुत जो फसल बची हुई है वो भी तबाह हो जाएगी। उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान से, वज़ीर आला सिंध से मुतालबा किया है कि वो फौरी तौर पर जो है किसानों की भी मदद की जाए। आप हमारे साथ ही रहेगा। रुख करेंगे मीरपुर खास का, जहाँ पर बिलाल महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि वहाँ पर कितने नुकसान हुए, बताइएगा। जी बिल्कुल, बारिश के बाद जिस तरह से मीरपुर खास शहर और शहरी जो है वो मुतासिर हुए हैं, उसी तरह से जो है वो मीरपुर खास के करीबी गाँव देहात जो है वो भी शदीद मुतासिर हुए हैं। खास तौर पर जो है वो ज़राई ज़मीन इस बारिश के मौके के ऊपर जो है वो शदीद मुतासिर हुई है। काश्तकारों की जो तैयार फसलें थी वो जो है ख़राब होने के दर पर आ गई हैं। मिर्ची की फसल के हवाले से मैं बताता चलूँ तो मिर्ची की फसल जो है वो मुकम्मल तौर पर ख़राब हो गई है, लेकिन वहीं पर जो है वो कपास की फसल को जो है वो 50% नुकसान पहुँचा है। जबकि जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ, मेरे अगब में जो है वो गन्ने की फसल जो है वो खड़ी है, वो तैयार होने के करीब है, लेकिन इस वक्त जो गन्ने की फसल में पानी जमा होने से वो भी जो है ख़राब होने के दर पे पहुंच चुकी है। जब इसी हवाले से हमारी काश्तकारों से बात हुई, काश्तकारों का यही कहना है कि उनको इस बारिश के मौके के ऊपर जो है वो भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। उनकी कई फसलें जो है वो कई सब्जियों की फसलें ख़राब हो चुकी हैं और कुछ जो फसलें बची हैं वो भी जो है वो ख़राब होने के दर पर है अगर इस पानी को जो है वो जल्द नहीं निकाला गया। जबकि काश्तकारों का ये भी कहना है कि वो इस वक्त तक जो है वो अपनी मदद आपके तहत जो इस पानी की निकासी को मुमकिन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि महकमा ज़राअत की जानिब से जो है अब तक उनसे कोई राब्ता नहीं किया गया है, कोई ताउन नहीं किया गया है। काश्तकारों की जानिब से मुतालबा सामने आ रहा है कि महकमा ज़राअत की जानिब से जो है वो काश्तकारों से राब्ता किया जाए, उनकी ज़राई ज़मीन को जो है वो तबाह होने से बचाया जाए। जिस तरह उनकी फसलें तबाह हो रही हैं उसको बचाने में जो है वो महकमा ज़राअत उनका साथ दे। जी और अब रुख करेंगे जलालपुर भटिया का, जहाँ पर मोहम्मद जाहिद मनीर हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद, बताएगा यहाँ की सूरत हाल के हवाले से। जी बिल्कुल, हालिया बारिशों की वजह से दरियाए चनाब में सैलाबी रेलों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। सैलाबी रेलों से दरियाई कटाव भी तेजी से जारी है। इंतजामिया की जानिब से दरियाए चनाब किनारे बसने वाले लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की वार्निंग भी जारी कर दी गई है, जबकि 6 मकामात पर फ्लड रिलीफ कैंप भी कायम किए गए हैं। मेरे साथ अहले इलाका मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी, हमारा गांव दरिया चनाब के किनारे वाक़ है चौचौरा। यहाँ पर एक हफ्ता पहले ही बारिशें हो रही हैं, जिसकी वजह से दरिया में फुल पानी बह रहा है। अब इतला है कि और बारिशों की वजह से पानी आ रहा है, तो इसकी वजह से ज़मीनी कटाव होने का खतरा है और साथ हो भी रहा है, पहले भी काफ़ी हो चुका है और साथ फसलों का भी नुकसान हो रहा है। जी बिल्कुल, मुकामी लोगों का कहना है कि दरिया चनाब से मुसलसल सैलाबी रेलों की वजह से ज़मीनी कटाव में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है और फसलों को शदीद नुकसान हो रहा है। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद जाहिद मुनीर आपका। बिलाल महमूद आपने अपडेट किया और ताज़ा गुल ने भी सूरत हाल के हवाले से बताया कि किस तरह से फसलों को नुकसान पहुंचा है। बहुत शुक्रिया आपका। बात करेंगे पनुआकल में टिड्डी दल की फसलों पर हमलों के बाद सफ़ेद मक्खियां पहुंच गई हैं। सुल्तानपुर, ठकरटाहू और मुबारकपुर समेत कई देहातों में सफ़ेद मक्खियों की फसलों पर हमले में सफ़ेद मक्खियों ने कई एकड़ पर तैयार फसलों को तबाह कर दिया। मज़ीद तफसीलात अली रजा की रिपोर्ट में देखिए।
सफेद मक्खियों के हमले से किसान परेशान हो गए। किसानों ने महकमा ज़राअत के अफसरान के खिलाफ एहतजाज करते हुए कहा, सफेद मक्खियों ने फसलों पर हमला करके फसलों को तबाह कर दिया है। पहले तो हमारी जो फुट्टी कपास थी तकरीबन 10 एकड़ है, वो में से हम हाथ धो के बैठे हुए हैं, बिल्कुल बर्बाद कर दिया। पहले जो थी टिड्डी थी, अभी सफेद मक्खी ने बहुत परेशान करा है। मक्खियों के हमले से कई एकड़ पर तैयार कपास, भिंडी और दीगर सब्जियों की फसलें तबाह हो गई हैं। पहले टिड्डी दल ने हमला किया था, अब सफेद मक्खियों के हमले ने फसलों को तबाह कर दिया है। ये करेले हुए हैं, भिंडी हुई है और वो ये तूरी, माना कोई हमारी फसल नहीं बची। सब सारी टिड्डी दल भी आ गई, वो भी तबाह कर गई, ये भी तबाह हो गया। काश्तकारों का कहना है, उन्होंने महकमा ज़राअत के अफसरान को सफेद मक्खियों के फसलों पर हमले की इत्तला दी तो ज़राअत के अफसरान फसलें देखकर चलते बने। रिपोर्ट आपने जानी। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे, ज़रूरी इलाकों में सफेद मक्खी ने कदावर फसलों पर, फलों, सब्जियों समेत दीगर फसलों पर हमला कर दिया है। अगले माह इस हमले में शिद्दत आने का खदशा भी जाहिर किया गया है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे फैसलाबाद में शौकत वट्टू एक ज़रूरी माहिर डॉक्टर के साथ मौजूद है, मजीद उनसे जानेंगे। हाँ जी बिल्कुल, मुल्क के ज़रूरी इलाके जहाँ पर जो नकदावर फसलें जो है वो पैदा होती हैं और इसके साथ साथ फल, सब्जियाँ और दीगर ज़रूरी अजनास पैदा होती हैं, वहाँ पर जो है वो सफ़ेद मक्खी ने जो है वो हमला कर दिया है और उसके नुकसानात जो हैं वो उनमें दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। जबकि अगले महीने जो है वो ज़रूरी माहिरीन के मुताबिक अगले महीने इसके जो नुकसानात हैं या इसके हमले में जो शिद्दत आने के जो खतरात पैदा हो गए हैं, इस वक्त इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ज़रूरी माहिर डॉक्टर सुहेल अहमद। हम उनसे जानते हैं कि ज़रूरी ये जो सफ़ेद मक्खी है ये किस तरह पैदा होती है, इसका तदारक कैसे किया जाता है, इसके नुकसानात क्या हैं? जी सर बताइएगा। सर बात ये है कि ये पौधों पे इसकी अफसाइश होती है, पौधों की निचली सतह पे अंडे देती है और वहीं से इसके बच्चे और फिर बालिग जो है निकलते हैं। दोनों बालिग और बच्चे दोनों ही नुकसान पहुंचाते हैं। दोनों के जिस्म से रतूबत खारिज होती है जिस पर जो है वो काली फंगस ग्रो करती है, जिसकी वजह से इसका फोटोसिंथेसिस का अमल रुक जाता है और पौधे और अपनी खुराक नहीं बना पाते, पौधे कमज़ोर हो जाते हैं और पैदावार में वाज़ेह कमी पैदा होनी शुरू हो जाती है। आजकल चूँकि बारिशों का मौसम है, अगस्त का महीना है, लोगों का ये ख्याल है कि शायद ये धुल जाएगी और ये इसके बाद इसकी अफजाइश नहीं हो सकेगी। लेकिन जैसे ही ये मौसम बारिशों का ख़त्म होगा और उसके बाद फिर सितंबर के शुरू में दोबारा धूप निकलनी शुरू होती है और रातें भी थोड़ा टेम्परेचर डाउन हो जाते हैं, इसके अफजाइश के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा तेजी के देखने की तवक्को है। इसके जो पैदाइश के जो इसकी अफजाइश के जो है वो अमकानात मजीद बढ़ जाएंगे और जिसकी वजह से इसके नुकसानात अभी तक मौजूद हैं जो, और इसलिए जो किसानों को चाहिए कि इसकी रोकथाम के लिए जो पेस्टिसाइड या दीगर जो ज़रूरी माहिर की तरफ से, माहिरीन की तरफ से जो सिफारिश करदा स्प्रे हैं उनका इस्तेमाल करें ताकि जो इसके नुकसानात को कम किया जा सके और फसलों को जो है वो नुकसान से बचाया जा सके। जी, पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी बादल जमकर बरसे, कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हुई। गली मोहल्लों और घरों में पानी दाखिल होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। किस शहर की क्या सूरत हाल है, वहाँ मौजूद अपने नुमाइंदगान से जानेंगे। सियालकोट में उस्मान इकबाल, सरगोदा से मोहम्मद इमरान खुराया, सुहावा से शेख अली रजा, टेरा गाजी खान से जौहर अमीन और राजनपुर से इम्तियाज बशौरी हमें अपडेट करेंगे। सबसे पहले रुख करेंगे सरगोदा का, जहाँ पर मोहम्मद इमरान खुराया हमारे साथ मौजूद हैं। जी इमरान, बताएगा बारिश के बाद यहाँ क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, सरगोदा शहर और इसके गिरदोनवा के इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे शहर भर में जो है मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का जो है वो पोल खुल गया है। हर तरफ पानी ही पानी है। बारिश की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सरगोदा शहर के जो गिरदोनवा की इलाके हैं, इस्तकलालाबाद, सुलेमानपुरा, महमदी कॉलोनी, गिलवाला, सेटलर टाउन, अली पार्क, जोर कॉलोनी और शहर के जो अंदरून ब्लॉक हैं वहाँ पर भी जो है पानी जमा है और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से जो मेट्रो कॉरपोरेशन का अमला है वो अभी तक इस किस्म के कोई इंतजाम नहीं नज़र आ रहे। और इसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पर यह बताता चलूँ कि बिजली का निज़ाम जो है वो भी बुरी तरह मुतासर है। 1 दर्जन से ज़ायद जो है फीडर ट्रिप कर गए हैं और इसके अलावा जो देहात हैं उनकी भी यही हालत है। वहाँ पर भी पानी जो है जमा है, लोगों के घरों में दाखिल हो चुका है। लोग अपनी मदद आप के तहत पानी निकाल रहे हैं और शहरियों को जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और मौसम भी इंतहाई खुशगवार हो गया है। बारिश के बाद जो हुई है बारिश और इससे जो है मौसम इंतहाई खुशगवार है। जी
सरगोदा के बाद अब रुख करेंगे सियालकोट का। उस्मान इकबाल यहाँ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि यहाँ पर शहरी क्या कहते हैं और क्या मनासिर देख रहे हैं। जी बिल्कुल, आज सियालकोट में दूसरे रोज़ भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है और सियालकोट में गुज़श्ता 2 रोज़ के दौरान 90 मिलीलीटर जो बारिश है वो रिकॉर्ड की गई है, जो एक बुलंद तरीन सतह की बारिश है, जिस बारिश के बाद जो है वो सियालकोट के मुतअद्दिद नशेबी इलाके जो हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शाहपुरा चौक पे। शाहपुरा चौक, इसके साथ साथ जो है वो एबर्ट रोड, वाटर वर्क्स, रेलवे रोड और उर्दू बाजार समेत शहर के मुतअद्दिद इलाके जो हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। सियालकोट वेस्ट मैनेजमेंट और कॉर्पोरेशन का अमला है, उन्हें फौरी तौर पर जो शहर के हालात हैं उनको मामूल पर लाने की हदायत जारी की हैं और उनका कहना है कि ज़िले इंतज़ामिया मुकम्मल तौर पर जो है वो इस वक्त अलर्ट है और शहर के जो हालात हैं वो जल्द मामूल पर आ जाएंगे, जबकि जो खतरात हैं वो इस वक्त मौजूद ना हैं। जी आगे बढ़ते हुए बात करेंगे सुहावा की, जहाँ पर शेख अली रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। शेख अली रज़ा, बताएगा यहाँ के मनासिर। जी बिल्कुल, मूसलाधार बारिश का सिलसिला सोहावा में आज दूसरे रोज भी जारी है, जहां पे बारिश होने से मौसम तो खुशगवार हुआ, लेकिन साथ ही जितने भी सोहावा के मुलहक्का इलाके हैं, जैसे डमेली का नवाही इलाका, थला चौधरियाँ हैं या बकड़ाला के साथ जो इलाका है अकड़ीला, चंदू अकड़ीला, वहां पे बरसाती नाले में तुग़यानी आने से जो है वो दर्जनों देहातों का जो सोहावा शहर से राब्ता बिल्कुल मुनक़ता हो चुका है और जो जितने भी इलाका मकीन के जितने भी लोग हैं वो इस वक्त सख्त सराफा एहतजाज है और उनका ये कहना है कि हर साल ही हमारे साथ ऐसा होता है और जैसे ही मानसून की बारिशें शुरू होती हैं तो हमारे बरसाती नालों में तुग़यानी आ जाती है, जिस वजह से हमारे राब्ते कई दिन तक शहर से मुनक़ता हो जाते हैं और हम घरों में महसूर होकर रह जाते हैं। और उनका साथ ये भी कहना है था कि जो इंतजामिया या हुकूमती नुमाइंदे आते हैं और फोटो सेशन करके वापस चले जाते हैं। दरीना मुतालबा है कि हमारे जो बरसाती नाले हैं इनके ऊपर पुली बनाई जाए ताकि हम जो है वो घरों में महसूर होके ना रहें, ताकि हम भी बाहर निकल सकें। जी सुहावा में तो आवाम काफी परेशान दिखाई देते हैं। डेरा गाजी खान में जौहर अमीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जौहर अमीन, बताएगा डेरा गाजी खान में बारिश के बाद क्या सूरत हाल है? जी, डेरा गाजी खान में अगर बारिशों की बात की जाए तो बारिशों ने डेरा गाजी खान में तबाही मचा दी हुई है। डेरा गाजी खान में इस वक्त शहर का कोई ऐसा रोड, कोई ऐसा गली मोहल्ला नहीं है जहां पे बारिश और सीवरेज का पानी जमा ना हो, जबकि डेरा गाजी खान में पेशगोई के बावजूद ज़िलाई इंतज़ामिया की तरफ से कोई भी इक़दाम नहीं उठाए गए। इस वक्त डेरा गाजी खान के मारूफ रोड फारा चौक पे मैं मौजूद हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुकम्मल तौर पर यहाँ पर रोड सीवरेज के पानी से भर चुका है। और अस्सलाम वालेकुम जोहर भाई, हम बहुत परेशान हैं। ये हमारे रूट है अलम पाक के, हम आज़ादारी करें, ये पानी निकालें। सीवरेज बंद है, सारा पलीत पानी है, नालियों का पानी है। अब मेहरबानी करें, ये बुज़ार साहब का इलाका है, हम बहुत परेशान है। सारी रात पानी भी निकालते रहते, फिर भी बारिश आ गई, कोई इंतजामी का मौजूद है नहीं यहाँ। मेहरबानी करें हम। जी, आपने सुना, शहरियों का कहना ये है कि यहाँ पर कोई भी इंतजामिया मौजूद नहीं है, जबकि मुहर्रम और हराम के अयाम भी हैं यहाँ पर और ये मेन रूट है मुहर्रम और हराम का, जहाँ से जलूस निकाले जाते हैं, लेकिन ज़िला इंतजामिया की तरफ से कोई भी इक़दाम देखने को नज़र नहीं आ रहे। जी, डेरा गाजी खान में भी आवाम परेशान ही दिखाई दे रहे हैं और शिकायत के अंबार लगे हुए हैं। राजनपुर से इम्तियाज हुसैन मशहूरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि यहाँ पर आवाम क्या कहते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं राजनपुर के मोहल्ला कमांगरा के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ पर अब्र रहमत क्या ही बरसी है। अब्र रहमत बरसने के बाद जो गलियों का पानी है वो घरों में दाखिल हो चुका है। आज शाम को जलूस का भी यहाँ पर एहतमाम है। इसी गली का मेन रूट है जो शाम 7 बजे इस गली से रूट जलूस का निकलेगा मुहर्रम उल हराम के हवाले से। इस वक्त भी इस महल्ले के अज़ादारान भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि जी आपको क्या मसला है और इंतजामिया ने अभी तक क्यों काम नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम, अदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाल ही तक अदा कोई बंदा इतना के पानी छिकण वास्ते कह नहीं आया, ना वो मशीन है ये। बाकी बिजली भी लाइट अम्बी वेंदी खड़ी है DCO साहब को, बाकी एहलकार जितनी सरकारी मशीनरी है उन्हें को इल्तमास करें दूँ
मेहरबानी करें कि पानी छिकवावें। जी, जैसा कि इनका कहना है कि ये आज शाम को भी इनका जो मजलिस का प्रोग्राम है और जलूस का रूट्स है ये आज रात शुरू हो जाएगा। ये मेन रूट्स पर भी हम ठहरे हैं। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके कि देखें कि हम सब लोग पानी के अंदर ही ठहरे हैं। ये पानी के हद निगाह तक ये पानी ही पानी नजर आ रहा है। ये जलूस यहाँ पर बड़ी मुश्किल से यहाँ से गुजरेगा, तो इंतजामिया को चाहिए यहाँ पर जल्द से जल्द कार्रवाई करके इसको खत्म किया जाए पानी को। इम्तियाज हुसैन मशहूरी भी बता रहे थे कि राजनपुर में भी आवाम परेशान ही दिखाई देते हैं। जौहर अभी ने अपडेट किया डेरा गाजी खान की सूरत हाल के हवाले से। सुहावा से हमारे साथ थे शेख अली रजा और सरगोदा से मोहम्मद इमरान खुरैया, जबकि सियालकोट की सूरत हाल के हवाले से उस्मान इकबाल ने बताया कि यहाँ पर आवाम किस कदर परेशानी में मुब्तला है। बात करेंगे दीपालपुर के इलाके हवेली लखा में निजी बैंक में डकैती की वारदात हुई। बुरका पोस्ट डाकू बैंक अमले को यकमाल बनाने के बाद लाखों रुपए लूटकर फरार हो गए। डाकू मैनेजर को भी अगवा करके अपने साथ ले गए। इतला पुलिस ने ताकुब किया और पुलिस और डाकू के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। डीपीओ काड़ा के हुक्म पर पुलिस ने पूरे इलाके की नाकाबंदी कर दी। पुलिस नफरी को देखकर डाकू बैंक मैनेजर को छोड़कर फरार हो गए। चोरी ऊपर से सीना चोरी। भावनगर में सालिवा नहर से पानी चोरी रोकने पर बासर अफराद ने महकमा नहार के मुलाजिम को तेर धार आले से नाक काट दी। बासर अफराद ने महकमा नहार के अपने को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। जख्मी मुलाजमीन को तशवीशनाक हालत में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुकामी पुलिस को इत्तला के बावजूद बासर मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकी है। भावनगर में यह वाक़या पेश आया जहाँ पर महकमा नहार के मुलाजिम के साथ बदतरीन तशद्दुद किया गया बासर अफराद की जानिब से और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में उसे मुंतकिल कर दिया गया। सरसब्ज घने जंगलात, बल खाती आबशारों और बर्फ से ढके बड़े बड़े ग्लेशियर्स के दिलफरेब नज़ारों से लुत्फानंदोज होने सयाहों की बड़ी तादाद में वादिया नारायण को अपना मस्कन बना लिया। कोरोना वायरस से बचाव के लिए काखान डेवलपमेंट अथॉरिटी ने भी इकदामात को मजीद सख्त कर दिया। मजीद तफसीलात अकील अहमद से। सियाहती मकामात पर पाबंदी उठते ही मानसेहरा की हसीन वादियों की सैर करने 6 लाख से जायद सयाह पहुंच चुके हैं। कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए होटल एसोसिएशन की जानिब से सयाहों में मास्क और सैनिटाइजर्स भी तकसीम किए जा रहे हैं। गवर्नमेंट ने जैसे ही अपनी रिस्ट्रिक्शंस हटाई हैं सियाहत से, तो हम लोग यहाँ पे टूरिज्म को एंजॉय करने आए हैं। यहाँ पे बहुत खूबसूरत वादी है। यहाँ पे आके SOPs पे काफी अमल हो रहा है और लोग मास्क भी यूज कर रहे हैं, सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं। बालाकोट में कोरोना के 47 टेस्ट मस्बत आने पर कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल मोहम्मद आसिफ ने नारान में हंगामी कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, सोशल मीडिया पर वादिया कागान को सील करने की झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। 5 होटल्स ऐसे हैं कि नारान में जिन्होंने थोड़ी SOPs की दोबारा वायलेशन की, उनको हमने सील कर दिया, जिसको बढ़ा चढ़ा के मीडिया पे ये रिपोर्टें दी गई कि कागान वैली सील हो गई है। ऐसी कोई बात नहीं है। नारान आने वाले सयाह कुदरती नज़ारों से लुत्फानंदोज होने के साथ साथ कोरोना SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाकर अपनी और दूसरों की जिंदगियों को महफूज बना सकते हैं। अकील अहमद, न्यू न्यूज, मानसेहरा। कवाली जिला माजोड़ में कोरोना के बाद निज़ाम जिंदगी मामूल पर आ गए, जब इसके साथ साथ खेलों के मैदान भी दोबारा आबाद हो गए। मजीद तफसीलात माज खान से। पाकिस्तान के साबका कबायली इलाकों से दहशतगर्दी के वाक़यात के खात्मे और अमन व अमान के बहाली के नतीजे में खेलों को भी फ़रोग़ मिला है। पूरे पाकिस्तान की तरह जिला बाजोड़ में भी कोरोना वायरस की वजह से मामूलाती ज़िंदगी मुतासिर थी, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कोरोना SOPs में नरमी के बाद जिला बाजोड़ में भी मामूलाती ज़िंदगी बेहतर अमन व अमान के साथ रवा दवा है और खेलों की सरगर्मियाँ जो कई माह से मुअत्तल थी दोबारा शुरू हो गई है। नौजवानों के खेलों में बढ़ती हुई दिलचस्पी और शमूलियत इस बात का सबूत है कि यहाँ के नौजवान नस्ल के खेलों में भरपूर दिलचस्पी है और वो इस तरह की सेहतमंद सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। अगर बात की जाए बाजोड़ की नौजवानों की रुझान की, तो इनका रुझान ज्यादातर फुटबॉल, क्रिकेट और वॉलीबॉल में नजर आता है। लॉकडाउन में नरमी के बाद शाम होती ही तमाम नौजवान बाजोड़ के सब्ज मैदानों में नजर आते हैं। कोविड-19 के बाद इंतजामिया तिब्बी हुकाम और कानून नाफिज करने वाले इदारों की बनाई हुई उसूलों पर अमल करती हुई जिला बाजोड़ के लोगों ने खेलों की सरगर्मियां मुअत्तल कर रखी थी। इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए न्यू न्यूज।